Welcome to my channel CA Guidance Education, and today we are going to do chapter Introduction to Cost and Management Accounting of CA Intermediate Costing paper. This is chapter number 1. We will do some parts of this today. Okay, what we will learn here, we will just learn first the definitions of what is cost, what is costing, what we mean by cost accounting, what is cost accountancy and management accounting. And after that, objectives of cost accounting, scope of cost accounting, then the relationship between cost accounting and management accounting, relationship between financial accounting and cost accounting, and difference between cost control and cost reduction. And the rest part will be done in part 2. Let's start with the thing. Okay, what is the definition of cost? In cost accounting, cost refers to the monetary value of resources consumed or sacrificed to achieve a specific purpose, सच एज प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ठीक है, अभी कॉस्ट को हम क्या समझते हैं कि वो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम, कितना कंजम्पशन हमने रिसोर्सेज किए हैं या कितने हमने सेक्रीफाइस किया है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए. तो जैसे कि हमको एक सामान तैयार कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स, उसके लिए हमने कितने खर्चे किए हैं, ठीक है, कितने उसमें हमारे रिसोर्स कंज्यूम हुए हैं, या वॉट प्रोवाइडिंग अ सर्विस में हमने कितने रिसोर्सेज कंज्यूम किए. दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द थिंग. ठीक है, it includes direct and indirect expenses associated with production, distribution and administration. उसमें जो हम cost जो बोल रहे हैं for a particular product और service provide जो कर रहे हैं उसके लिए direct expenses as well as indirect expenses दोनों को include करना है, which are related with production of the goods, distribution and administration. Costs are categorized into various types such as variable, fixed and semi-variable. डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द रिलेशन टू द प्रोडक्शन लेवल्स. और कौन से इसमें जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द विच प्रोडक्शन लेवल में यूज वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल, वॉट एवर इट इज. अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट इज क्रूशियल फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस. तो कॉस्ट क्या है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए जितने हमने खर्चे किए हैं, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम कितने खर्चे किए हैं, या क्या सामान हमने कंज्यूम किया उसके प्रोडक्शन के लिए, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉस्ट as per cost accounting. So what is costing? अभी हमने किया cost. What is costing? Costing in accounting refers to the process of determining and allocating costs associated with the production of goods and services. जो अभी हम जो goods and service प्रोड्यूस करने जितने कंजम्पशन किए उसमें जितने कॉस्ट हुए उस कॉस्ट्स को एक जगह में अकाउंट करके और उसको प्रोसेस करना, एलोकेट कॉस्ट करना, किसके कितना खर्चा हुआ, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉस्टिंग. इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड असाइनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स और प्रोडक्ट्स. मैंने हर काम के लिए कहाँ पे कौन सा खर्चा हुआ है उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासिफिकेशन किस हेड के अंदर जाएगा, एंड देन वी असाइन द एक्सपेंसेस टू द वेरियस कॉस्ट सेंटर्स. ठीक है, कॉस्टिंग मेथड्स सच एज जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस एक्यूरेटली कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Okay, there are different types of methods for costing. This job costing, process costing, and we will do in respective chapters. Activity based costing help organizations accurately calculate the total cost of production. This information is valuable for pricing decisions, budgeting and assessing the profitability of the different products or services. कौन सा प्रोडक्ट सेल करके हमें कितना प्रॉफिट कर रहे हैं या कितने हमने प्राइसिंग डिसीजंस ठीक लिए हैं कि नहीं, बजटिंग में हमें हेल्प होता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड costing. So we follow what we mean. We understood what is meant by costing then. So it is the allocation of the cost with the production of the goods or services. Then we do the definition of cost accounting. Cost accounting क्या है? It is a branch of accounting that focuses on capturing, recording and analyzing costs associated with the production of goods or services within an organization. तो क्या हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का एक ब्रांच है जो क्या कर रहे हैं, सब खर्चे को पहले कैप्चर कर रहे हैं, फिर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं with the production of goods or services within an organization. Its primary purpose is to provide detailed information about cost to aid management in decision making. ठीक है, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए तो कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट वो तैयार करेगा, कितने अमाउंट पे करेगा. कंट्रोल एक्सपेंसेस, टू कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, वेस्ट ऑफ मनी शुड नॉट बी देन, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी देन, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी डन and improve overall financial performance. Okay. Cost accountants use various methods to allocate and track costs such as job costing, process costing and activity based costing. This discipline plays a crucial role in helping businesses make informed choices regarding pricing, budgeting and resource utilization.
सो वी कैन से व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो हर खर्चे को कैप्चर कर, रिकॉर्ड कर, एनालाइज कर, उसके साथ कौन से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कितना यूज़ हुआ है और कौन सी सर्विस हम जो रेंडर करें उसमें कितना खर्चा हुआ है, और उसका मेन इन्फॉर्मेशन इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन किस लिए मैनेजमेंट को देना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, डिफरेंट जो डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए ये सब खर्चे का हमें एलोकेशन बहुत ज़रूरी है. डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. ओके, छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको हमें अच्छे से जानना है कि व्हाट आर दे मेंट, व्हाट इज कॉस्ट वर्सेस कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी. इट इज सिमिलर आंसर. अकाउंटेंसी, cost accountancy is a branch of accounting that focuses on recording, analyzing and managing the cost associated with producing goods or services within an organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी खर्चे उसको रिकॉर्ड करना है, उसको एनालाइज करना है, कौन से खर्चे किस करना है, उसको क्लासिफिकेशन करना है, और कौन से गुड्स में कौन से खर्चे कितने हुए वो वहाँ से पता चलता है. सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट डाटा टू एड डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल. ठीक है, ये सब चीज़ के लिए हम कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ ब्रांच विच हेल्प्स इन रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, क्लासिफिकेशन करता है, मैनेज द कॉस्ट. ठीक है. Now we have management accounting. Okay, this is another term which you have to know very well. Management accounting involves the process of collecting, analyzing and presenting financial information to help internal management make informed decisions within an organization. क्या है मैनेजमेंट अकाउंट? मैनेजमेंट के क्या काम है? काम है कि हर डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेना पड़ता है. तो व्हाट हैपन्स, दे टेक डिसीजन बेसिंग ऑन व्हाट डाटा. सो डी डाटा कहाँ से इनको मिलता है? दिस डाटा मैनेजमेंट अकाउंट के इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. ये जो डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनल मैनेजमेंट तो कि अपने डिसीजंस ले सके. प्रोवाइड इंसाइट कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी का. एडिंग इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. ओके, तो इसमें क्या है, अगर ये डाटा मैनेजमेंट के पास नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस, वेरी प्राइम डिसीजंस लाइक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बजट तैयार करना, परफॉर्मेंस प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग which primarily serves external stakeholders, management accounting is geared towards supporting internal decision making and improving organizational efficiency. तो एज अ होल वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेटर पोजिशन में रखने के लिए मैनेजमेंट को इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो जुगाड़ कर, दैट इज डेल्ट बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है. सो वाई वी कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारा मेन जो चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाई वी आर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग, द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सो द ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द कॉस्ट डिटर्मिनेशन. ठीक है. टू एसरटेन एंड एनालाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना. कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है या सर्विस हम रेंडर करें, उसका कितना खर्चा हुआ है उसको एसरटेन करना, और उसको फिर एनालाइज करना वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जा रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर. ठीक है. फिर सेकेंड है कॉस्ट कंट्रोल. ओके, कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ वेरी वाइटल रोल फॉर एनी बिजनेस, बिकॉज अगर आप इररिलेवेंट कॉस्ट को जब तक हटाएंगे नहीं, कॉस्ट को परफेक्टली नहीं चलाएंगे, तब तक आपका कॉस्ट एक्सपेंसेस बढ़ते रहेगा एंड दैट विल इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू प्रॉफिट गिव यू लॉस. ठीक है. सो कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो रहा है, टू रेगुलेट एंड मैनेज कॉस्ट इफेक्टिवली इंश्योरिंग दैट दे अलाइन विद बजटेड और स्टैंडर्ड अमाउंट्स. एक बजट हम तैयार कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें खर्चा करना है, हर स्टेप पे कौन से कॉस्ट सेंटर में कितने होने चाहिए उसके हिसाब से हम बजट तैयार कर रहे हैं. एंड फॉर दैट वी हैव टू सी वेदर द हमने जो खर्चे किए हैं दैट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द बजट और इट इज़ इंक्रीजिंग इन द बजट. ठीक है. वहीं हमें कंट्रोल सेट करना पड़ेगा, दैट द कॉस्ट इज एज पर द कॉस्ट सेट. ठीक है. इट विल इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. Then cost reduction, identifying areas of cost reduction by analyzing cost variances and improving operational processes to achieve economies of scale. Yes, cost reduction हम कैसे कर, पहले हम देखेंगे जो खर्चे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है उनको हम शट डाउन करेंगे, उसको नहीं करना है, वहाँ पे हमारे कॉस्ट रिडक्शन होगा. प्लस और भी कोई एक्टिविटी को हम दूसरे वे से करने से अगर खर्चा कम लगेगा वो वेज भी ढूंढ के निकालेंगे, सो दैट द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड. ओके, एंड दैट कैन बी हेल्प टेकन हेल्प बाय ऑफ वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंस हम लोग करेंगे, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे उसमें. सो वी कैन से वी कैन रीच द इकोनॉमीज ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ
cost accounting. Then profit planning, facilitating the development of effective profit plans by providing insights into cost, pricing strategies and revenue projections. Yes, हम पहले अगर बजट तैयार कर सकेंगे, बजट के हिसाब से अपने बिजनेस को चलाएंगे, हर खर्चे को करेंगे, तो वी विल हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट, हम जो प्रॉफिट रखें जो सोच करके उसी प्रॉफिट को हम अचीव कर सकेंगे. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को करके एग्जैक्ट व्हाट शुड बी द कॉस्ट, अगर हम प्लानिंग करके बिजनेस को चलेंगे, ये प्रोडक्शन चलेगा हमारा, वो सेल भी वैसे ही हिसाब से होगा जैसे पर आर थॉट गोल. तो क्या होगा, वी कैन प्लान फॉर अ प्रॉफिट बिफोर हैंड. Performance evaluation, evaluating the performance of departments, products or individuals by comparing actual cost against standard or budget cost. तो हम पहले standard budget cost set कर देंगे हर cost के लिए, तो हर खर्चे के लिए indirect खर्चे जब भी हो बजट सेट करेंगे, हर डिपार्टमेंट का अलग से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन किया जाएगा, प्रोडक्ट्स के पीछे कितने खर्चे सबको, और देखा जाएगा वो कितना जो स्टैंडर्ड व बजट हमने सेट किया उससे कितना वेरिएट कर रहा है, इज इट इंक्रीज्ड और डिक्रीजिंग. ठीक है, तो वी कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. Decision making support, providing relevant and timely cost information to management in informed decisions related to production, pricing, investment and other strategic choices. तो क्या हो रहा है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, टाइमली कॉस्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल रहा है तो मैनेजमेंट कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. कोई भी रिलेटेड प्रोडक्शन को ये इन्फॉर्म डिसीजन मिल रहा है तो प्रोडक्शन के बेसिस में खर्चे कितने होंगे, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स जो हम कर रहे हैं उसमें अगर इन्फॉर्म्ड एट द टाइम, रेलिवेंट टाइम में इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आवर डिसीजन विल बी परफेक्ट एंड आवर बिजनेस विल प्रॉस्पर. ठीक है, फिर रिसोर्स एलोकेशन, हेल्पिंग इन द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू द कॉस्ट एसोसिएटेड with different activities within the organization. अब resource allocation, optimum utilization of resources हमारा main achievement होना चाहिए. We should goal to achieve the resources in such a way that it least expenses and efficient manner we can achieve the goal. ठीक है, तो resource allocation can be done with the help of proper cost accounting methods. Then we have internal inventory valuation. Okay. रिसोर्स एलोकेशन हमने ऑलरेडी किया. अभी डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, अभी इन्वेंट्री एक्यूरेटली फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है, हाउ टू वैल्यू मार्केट आइदर लोअर ऑफ कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो हम लेते हैं फॉर आर वैल्यूइंग आर इन्वेंटरी. ठीक है, इन्वेंट्री इज स्टॉक, व्हाट वी मीन बाय स्टॉक, दैट इज इन्वेंट्री. अभी डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्यूरेटली फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब रिपोर्ट करेंगे इन्वेंट्री का कितना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, बिजनेस के एंड में कितना रह गया तो उसका कितना वैल्यूएशन हो जाए, दैट विल बी डिपेंड ऑन द बेस ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लीस्ट ऑफ देम. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट द स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम कंप्लाई कर रहे हैं, साथ में हमें इंटरनल रिपोर्टिंग कर एक्यूरेटली हम फॉलो करें कि नहीं. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द cost accounting. So we can say overall cost accounting plays a crucial role in improving the financial health and decision making process of an organization. ठीक है, so this was the objectives of cost accounting. Now we will do scope of cost accounting. Scope क्या है, मैंने अभी जो cost accounting हमें क्या help कर रहा है, we can say what are the roles played by cost accounting to help us in a business progress. ठीक है, so let's see one by one what is there. Cost accounting plays a crucial role in various aspects of business, including cost control. Yes, first we know कि cost को control हम कर सकते हैं with the help of cost accounting. Helps in monitoring and managing cost, ensuring efficient resource utilization. Yes, resources के वो wastage नहीं हो रहा है, कहाँ जहाँ पे भी हम control कर सक रहे हैं cost को कर रहे हैं, करके हमारे managing cost को monitor कर रहे हैं, from बिफोर हैंड हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड सेट करें, उसके हिसाब से हम अपने खर्चे को कर रहे हैं, सो दैट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन. देन डिसीजन मेकिंग, obviously cost accounting helps in decision making by providing informed decision at the perfect time. So strategic planning and product development can be done, right? Budgeting aids in creating budgets by estimating and analyzing cost for future periods. Budget तैयार करने में help कर रहा है क्योंकि हमें cost provide कर रहे हैं. So we can prepare budgets beforehand and accordingly do our actual production. परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कोई भी चीज़ का कोई असिस्ट इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस एनेबलिंग इम्प्रूवमेंट. ठीक है, अभी कोई भी डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे चल रहा है मार्केट में, कौन सा किसका सेल कितना बढ़ रहा है कि नहीं, दैट कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग.
इन्वेंट्री वैल्यूएशन जस्ट भी हमने जब पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हेल्प कर रहा है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टैक्स कैलकुलेशंस. यस, हमें स्टॉक मार्केट को स्टॉक एंड ओपन क्लोजिंग स्टॉक को कितना लेना है एट द एंड ऑफ द बिजनेस एंड में हम कितना लेंगे, इस वैल्यू में लेंगे. दैट वी कैन डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग. Then profitability analysis helps identify profitable and non-profitable products or services. कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है नहीं है वो हमें पता कहाँ से चले, बिकॉज वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट डाटा. Then regulatory compliance ensures compliance with accounting standards and regulations. Yes, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने, बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करने में जो डील्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या जो भी रेगुलेशन सेट है उसको हम मीट कर रहे हैं कि नहीं, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हम मीट कर रहे हैं कि नहीं. ऑल दिस आर सेट सीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग. सो दिस इज द we can see the benefits of cost accounting. Let's see process improvement. Yes, अगर कोई भी हम देख रहे हैं इनफिशिएंसी है हमारे ऑपरेशनल प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, अच्छे खासे से हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ऑपरेशनल डिफिशिएंसीज के लिए हमारे खर्चे बढ़ जा रहे हैं. तो दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग से. ओके, सो वी कैन आइडेंटिफाई दो इनफिशिएंसीज एंड रिमूव दोज इनफिशिएंसीज एंड improve the operational processes also. Strategic planning supports long-term planning by providing cost-related insights. हमें इन्फॉर्मेशन पहले से कॉस्ट के बारे में पता चल जाए, इसलिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सक रहे हैं. एंड बिफोर हैंड एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के चक्कर में जो हमें मिल जा रहा है, उसके लिए हमें क्या हो रहा है, हम अपने बिजनेस में मोर प्रॉफिट हम ला सकते हैं देन अदर बिजनेसेस विच डू नॉट गेट द बिजनेस इन्फॉर्मेशन राइट द राइट टाइम. सो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू प्रोवाइड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन at the relevant time and helps us in taking long-term decisions based on strategic planning, based on the cost-related data available from cost accounting. So in essence, cost accounting is a valuable tool for businesses to enhance efficiency, make informed decisions and achieve financial goals. तो हम देख सकते हैं कि cost accounting हमें help कर रहा है by as a valuable tool, हमारे business को help कर रहा है by providing efficiency. We can make in less time, less cost, best products and make informed decisions because we are getting the information at the right time, as well as a detailed information because data is collected, it is analyzed on the basis of products, right? And financial goals can be achieved with the help of cost accounting. Now we will study what is the relationship between cost accounting and management accounting. ठीक है, अब cost accounting और management accounting में क्या relation है. So cost accounting and management accounting are closely related disciplines but they have distinct focuses. उनका अलग अलग focus भी है but they are closely related. So cost accounting का focus हम पहले देखेंगे. What is focus? Primarily concentrates on recording, classifying, analyzing and controlling costs related to production, operations and activities. So क्या मेन काम है, प्राइमरी कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, डाटा को रिकॉर्ड, डाटा रिलेटिंग टू कॉस्ट आर रिकॉर्डेड, दे आर एनालाइज्ड एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, operations and activities. Okay, purpose provides detailed information on costs associated with manufacturing products or delivering services. कोई भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं उसमें जितने डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कॉस्ट के बारे में, एज वेल एज कोई भी सर्विस हमें डिलीवर कर रहे हैं उसके बेसिस में हमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, खर्चा कितना हो रहा है उसके बारे में. टूल्स इन्वॉल्व्स मेथड्स लाइक जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग, हम बजट फॉलो कर रहे हैं, एक बजट तैयार कर रहे हैं, उसके हिसाब से वर्क हो रहा है कि नहीं, डिविएशन कुछ हो रहा है कि नहीं, उसको देखे विद कैन टेक द कंट्रोल मेजर्स. प्रोसेस कॉस्टिंग, दिस आर ऑल मेथड्स ऑफ cost accounting. Then we have time frame, emphasizes historical data to calculate cost. इसमें क्या कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल डाटा को ले रहे हैं, काम में लगा रहे हैं, जिसके बेसिस में हम अभी का डाटा को, कॉस्ट को निर्धारित कर सकेंगे. ठीक है. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन फोकस है encompasses a broader scope. It is a broader scope than the cost accounting, including financial and non-financial information for decision making, प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो इसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है क्योंकि सिर्फ ओनली फिनेंशियल, जैसे कि इसका मेन पर्पस था कॉस्टिंग का ओनली फिनेंशियल मैटर, बट हियर it includes financial as well as non-financial information for decision making, right? Planning and control. Purpose aims to assist management in making strategic decisions. Management को different strategic decisions लेने पड़ते हैं, उसमें help करने का इसका main purpose है. By offering a comprehensive view of the organization's performance. Organization कैसे perform कर रहा है, इसमें क्या financial matters को भी importance दिया जाता है as well as non-financial matters also. ठीक है.
टूल्स के यूटिलाइजेस वेरियस टूल्स लाइक बजटिंग, फोरकास्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ये सब क्या हेल्प करता है? हेल्प्स टू सी वेदर द डिसीजंस आर टेकन परफेक्ट और नॉट. ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस हम करेंगे, साथ में बजटिंग, फोरकास्टिंग, ऑल दिस थिंग्स वी कैन दिस स्टेप टूल्स वी कैन यूज फॉर management accounting for taking whether see we are going to take the decisions perfectly or not, whether planning and control is done according to standards or not. Then we time frame often incorporates both historical and future oriented data. We have seen कि हमने cost accounting में हम historical data के base में अभी के at present के cost को ले रहे हैं, लेकिन for management accounting they are taking in including the historical as they are also including the future oriented data also. So we can see management accounting has a broader prospect than cost accounting. In summary, while cost accounting is a subset of management accounting, cost accounting primarily deals with costs and cost control within an organization's production and operational activities, whereas management accounting provides a broader perspective by considering various financial and non-financial aspects to सपोर्ट मैनेजरल डिसीजन मेकिंग. इसका मेन पर्पस है मैनेजरल डिसीजन मेकिंग हेल्प करना, इसलिए फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी ये अंडरटेक करे. बट कॉस्टिंग वाज मेनली ड्वेल विद द cost and cost control. How much cost is related? So we will first recorded, analyzed and classified the cost and control the excess money we have used. And when we are seeing a management accounting, the main is to take the decisions based on financial as well as in non-financial matters information also. So it's a broader prospect. Then we see relationship between financial accounting and cost accounting. अभी हमने क्या किया? Cost accounting and management accounting. Now we will see the relationship between financial accounting and cost accounting. ठीक है, financial accounting and cost accounting serve different purposes within the realm of accounting. दोनों क्या करते हैं? एक ही accounting के अंदर है, but उनका दोनों का अलग अलग purpose है. Financial accounting का क्या है? External reporting, primarily concerned with providing financial information to external parties such as investors, creditors and regulatory authorities. ठीक है, अभी जो regulatory authorities है, statutory regulatory authorities है, उनको ये investors को जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, या creditors को जिनको पैसा मिलेगा, जिन्होंने हमसे सामान खरीदा उससे जब हमें पैसा मिलेगा, दो ज़्यादा whom we are going to give the money, they are the creditors. ठीक है, तो sundry creditors को information देना, investors को information देना and regulatory authorities. This is the external reporting. Then objective aims to present a true and fair view of the financial position and performance of the business. Business का क्या performance है, business का true and fair view of the financial position क्या है, वो information देना, इसका काम है, financial accounting का काम है, so that investors can invest some money, creditors can have the they are going to be paid, and so they will sell the goods to the customers. And then we have says regulatory authorities also get information from the financial accounting about the things whether they are working properly or not. Then their scope covers the entire organization, summarizing financial transactions for the company as a whole. इसका scope क्या है? पूरा full organization cover कर रहा है, and it is financial transactions summarizing the full financial transactions for the company as a whole. Standards follows generally accepted accounting principles, GAAP, GAAP हम के हैं, और द IFRS, that is International Financial Reporting Standards को follow करता है financial accounting, right? Then we have Then we have the reports. So reports in financial accounting क्या बोल रहे हैं? Generates financial statements like the income statement, balance sheet and the cash flow statement, right? तो क्या है कि financial statements क्या कर रहे हैं? Income statement, that is profit and loss account, then the balance sheet and the cash flow statement, ये है financial accounting का काम. So what we are doing? We are preparing the financial statements for the externals. Cost accounting का में internal management, primarily focused on providing information to internal management for decision making, planning and control. Okay. Objectives aims to determine and control the cost of producing goods and services within the organization. Scope क्या है? ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्या था? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट कितने खर्चे हुए हैं सबका गुड्स प्रोड्यूस करने सर्विस देने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था ओवरऑल टू द एक्सटर्नल पार्टी. ठीक है, स्कोप फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स, एनालाइजिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस. जितने भी खर्चे हुए उसको एनालाइज करना, उसको क्लासिफिकेशन करना और उसको देना टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोसेस और द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो इट इज एन इंटरनल मैनेजमेंट पर्पज एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग.
Then we say focus on specific activities, process of products, analyzing cost and operations, and standards क्या follow करता है, adapts methods such as job costing, process costing and standard costing to suit the internal needs of the organization. अब organization के internal needs के लिए जो भी follow कर रहे हैं, accounting standards follow कर रहे हैं, साथ में process costing methods, standard costing use किया जा रहा है cost accounting में, and जब हम जहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग में वी वर फॉलोइंग गैप और द IFRS, यहाँ पे हम क्या करें इंटरनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या प्रोसेस कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसको फॉलो कर रहे हैं. रिपोर्ट्स जनरेट्स रिपोर्ट्स लाइक कॉस्ट शीट, वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट्स एंड बजट रिपोर्ट्स. बजट रिपोर्ट तैयार हो रहा है, वेरिएंस एनालिसिस शीट तैयार हो रहा है. मैंने हम जो वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं उसके जितने रिपोर्ट्स उसको भी हम देख रहे हैं. ओके, कॉस्ट शीट आ रहा है, कॉस्ट शीट डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट और any service rendered. In essence, financial accounting emphasizes external reporting to stakeholders, ensuring transparency and compliance with accounting standards, right? While cost accounting is internally focused, aiming to assist management in controlling and optimizing cost for better operational efficiency. So cost accounting हमें help कर रहा है overall जो भी हमें internal जो compliances करने हैं, हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के फोकस्ड इंटरनली फोकस्ड एमिंग टू एसेस मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट फॉर बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या एम्फेसिस है, टू रिपोर्ट टू द एक्सटर्नल पीपल जस्ट लाइक स्टेक होल्डर्स देन द रेगुलेटरी बॉडीज, और ये देखना है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं वर्क में एंड टू कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. Now we will do difference between cost control and cost reduction. Okay, the word cost control और cost reduction में difference क्या है? Cost control मतलब हम पहले ही इसको रोकेंगे कि वो ना हो, और cost reduction क्या है कि हमें देखना है कहाँ पे wasteful expenditures उसको हम पे reduce करने हैं. ठीक है, let's do what is saying. Cost control and cost reduction are related concepts in financial management, but they have distinct focuses. Okay, cost control क्या कर definition? Cost control involves managing and regulating expenses to ensure they are aligned with pre-established plans and budgets. कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, पहले हम बजट्स तैयार करेंगे, प्लान सेटअप करेंगे, उसके हिसाब से हम खर्चा को मिल रहा है कि नहीं रेगुलेट करेंगे, वेदर इट इज़ मैचिंग विद द स्टैंडर्ड सेट और नॉट. दैट इज व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स. द प्राइमरी गोल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू प्रिवेंट कॉस्ट फ्रॉम एक्सीडिंग बजटेड अमाउंट्स while maintaining efficiency and quality. क्वालिटी को रखते हुए, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन मेथड में रखते हुए उसको देखना है कि बजटेड कॉस्ट जो है उसको एक्सीड नहीं करना है. राइट, एम्फेसिस क्या है, फोकस ऑन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट इन रियल टाइम. रियल टाइम में जब जैसे जैसे कि काम हो रहा है वैसे वैसे ही हमें उसको मैनेज करते रहना है, सो दैट मॉनिटर करते रहना है, सो दैट कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द बजटेड सेट. often through budgetary controls and variance analysis. ठीक है, long term view it aims to keep cost at a sustainable level without necessarily reducing them. इसमें क्या है, एक sustainable level जो कि हमारा जो efficiency है बिजनेस का वो मेंटेन होता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मेंटेन्ड टाइम में, उसके बाद में हम कंट्रोल सेट करें सो दैट कि जो बजट को क्रॉस ना करे. और कॉस्ट रिडक्शन हम जब बोलेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन? कॉस्ट रिडक्शन इन्वॉल्व्स एक्टिवली सीकिंग वेज टू डिक्रीज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब जो खर्चे जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनको पूरी कमा लेने का बात किया जा रहा है कॉस्ट रिडक्शन में. राइट, ऑब्जेक्टिव के द मेन गोल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज टू लोअर ओवरऑल कॉस्ट टू enhance profitability without compromising the quality of products or services. हाँ, इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि हमारा मेन मकसद है हमारे कॉस्ट को कमाना है, ओवरऑल कॉस्ट को कमा देना है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. हम जो प्रॉफिट, लेकिन हम इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स में नहीं करना है या सर्विस में नहीं करना है. ठीक है, इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक मेजर्स सच एज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, रीनेगोशिएटिंग सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. रीनेगोशिएटिंग मतलब अभी सप्लायर्स जब हमसे सामान ले रहे हैं उनसे हम नेगोशिएट करेंगे तो हमें कम में देगा, हम लॉट में खरीदेंगे. एंड इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स. एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स में हम जो इम्प्रूवमेंट्स इसमें स्टेक करेंगे इस बार, तो कि हमारा जो एफिशिएंसी है सब जो भी हम नए प्रोसेसेस लेंगे सब हमें एफिशिएंसी में हेल्प करेंगे. एंड दे एट लीस्ट कॉस्ट दे विल हेल्प अस टू reach a goal of making the profit of the company. Long term view, it is more aggressive approach that seeks permanent decrease in cost over an extended period. Over extended period में इसका permanent growth in permanent decrease in cost will be done in the
मेथड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट रिडक्शन ओवरऑल कम जा रहा है, उसको फिर से बढ़ने की बात नहीं आ रही है, बोले जा रहे हैं फॉर परमानेंट डिक्रीज ऑफ द कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है, सो वी कैन सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल. In summary, cost control focuses on managing cost within predetermined limits. एक लिमिट सेट कर रहा है, उसके लिमिट के हिसाब से उसको कंट्रोल करके रखा जाएगा कि उसको एक्सीड ना करे, राइट. While cost reduction involves actively seeking ways to reduce the cost to improve overall financial performance. Okay, cost control is more about maintaining a balance, while cost reduction is about actively seeking opportunities to cut expenses. Okay. So this was the difference between cost reduction and cost control. And steps में what are the points of distinction we will be doing in the cost control and cost reduction को हम कैसे parts point ways में हम उसको लिखेंगे. in the next part we will do it, and 2-3 parts are left over, we will be completing in the next part. Thank you.